you can see. Okay, so एक बार so this was the multi-tenant architecture of Salesforce that I was talking about. Okay, so the servers they are same. So we have the common common servers and we have multiple clients. So these multiple clients share the same servers, but what happens is that this reduces the cost of operations. This make it cost effective, maintenance effective, and a lot of and one more thing, like the all the applications which we develop are developed over the metadata which is already there in Salesforce. So what happens is that some metadata is common. So if Salesforce is making any changes in the basic metadata, so it gets reflected to the whole organization. So like every other application will get the same changes which are done for the basic application. So in that way, Salesforce maintains the securities, like they send the patches regularly, security patches, and they have the they increase the efficiency every now and then. So they have this multi-tenant architecture. Okay. So after that, okay, let's talk about how you can log in to the Trailhead and how you guys can learn and how you guys can get a job from there. Okay, because our main motive is to get jobs. Okay, because see, currently the market is like that, as you all know, that there are a lot more less jobs than before. Earlier there were a lot more jobs, but now it's decreasing because the grads which are graduating, so they are not that skilled. So to get you more skilled, what you can do is you can make an account on Trailhead. Okay, and on Trailhead you can complete the introduction, and after that you will be having a lot of trail mixes. Okay, so you can register for any trail mixes, you can complete all those trail mixes, and after completing those you can go to a journey to Salesforce program. So what journey to Salesforce is that you are going to start with the basics, you are going to pick up, you are going to make small projects, and then you can apply in lot of companies which hire directly from this journey to Salesforce. Okay, so and they give you a lot more LPAs than the companies which will get you in the in the free market. If you come, so you will get a lot more package from them. So what happens is that go to this do these trail mixes, make some projects, there will be guided paths. You don't need to do anything from yourself, you just need to follow the flow whatever is there. You need to go to the curriculum. It will provide you simple basic steps with hands-on programs, not like this. You are not going to you are not going to learn anything written. You just need to implement that in your org, and after implementing you can see like this is the changes I have made, this is the application I have made. You can make basic applications like car washing application, like that. Like there are there are a lot more projects available online. You just need to look. And also on Trailhead, if you go to the Trailhead, so there will be a trail mix, and alongside that there will be a projects tab. So you can go to the projects tab, you can follow their guided paths, and after following those paths you can create your own projects, and after creating your own projects you can show this on your CV also. You will get your own it's like GitHub. Okay, more or less, not GitHub, you will be having your personal profile which you can showcase in your CV, like this is what I have done till now. So these I have these 85 to 90 badges, and I am Salesforce ready. Like I can come to the company and I can start working on Salesforce from the first day. I don't need prior training for Salesforce. So because we also didn't know earlier what is this. So I got training from the Cognizant. There was a trainer of 3 to 6 months. There is a training program which is done by them. So but there are various positions which are only open for Salesforce developers. So you can just
for freshers also. So there are websites like you can search simply. So sales, Cognizant also hires for Salesforce directly Salesforce developers. So there are like a lot more organizations which hire only for Salesforce as a Salesforce developer, and you can get a good package out of them. And also here the language used is Apex. Okay, so it is a lot more similar to Java. So if you have any idea about Java, so you can start working on that. And the difference is that Java has a multi-threading. Okay, but the Apex doesn't have any multi-threading. It works on this Apex runtime, so that doesn't have any multi-threading or other things which Java has. But all these luxuries are maintained by the Salesforce itself. So Salesforce has made their platform in a way that multi-threading can be done using queuable jobs and using the future callouts. Like there are future callouts. You can do. There are future methods. You can do something when the in conventional method. What we do is, if we have all the data, we call the method if we have all the data. But what future method does is that if you don't have the data at current time, you just write this method, and whenever you will be getting that data, the argument which you are passing, so the method will create another thread like multi-threading, and it will do the computation that is there. So see, so Apex also has their Apex also has a lot more. It is a lot more efficient in a way that you can create industry level applications. Okay, the projects I have worked upon are earlier. My client was Prudential Insurance of America. Okay, so that's a company like LIC. So they have a lot more clients, a lot bigger client base. They have multiple of claims, 10,000, 15,000, 20,000 claims coming per day and getting processed. So all of that was possible because of Salesforce. Because what Salesforce did is that it also you can various lifestyle companies use Salesforce also, like Adidas, Ralph Lauren. So all of these use Salesforce as or the website which you see. So that everything is done on Salesforce. Okay, but you don't know, you don't heard about it. The reason because behind is that because it is used as a customer relationship management part. So the guys which work in which are CSPs, they usually know about it, and also the development which is done is not that common. But what Salesforce have done is it is increasing a lot, like a lot more jobs are coming up in this. So it is estimated that currently in 2022 there were 6.6 million of jobs which were there worldwide in Salesforce. But Salesforce have introduced their Salesforce Einstein. It's just like ChatGPT. So they have introduced that you can just write whatever you want, and it will give you a code, like a base code which you can modify according to your needs, and you can implement that on your org. What happens from this is that the jobs are going to get increased. So it is estimated that around 2028 there will be around 75 million of jobs. Which will be only in Salesforce. Okay, so that will be done. So that is around 20% CAGR. These jobs are increasing with a 20% CAGR. So that's a lot more jobs. Okay, so you can get industry ready by just I will provide the links to Mr. Rajivnath sir, and they can forward it to you. You can create your accounts. You can create. You can start working on it. And if you have any. I will provide my email and also my number, so you guys can reach out to me if you want any help. Like if you are not able to understand how this is going to work, how I need to make projects, how can I showcase these projects, how can I increase my likelihood of getting jobs in Salesforce. So I can help with these things. Okay. But the thing is that you need to start making projects. You need to start working on it. You can create a good level of understanding. If you start like in 2 months, you can get a good level of understanding how Salesforce works, how the customers come.
how the leads get generated, how we get the opportunities, how the CSPs are creating reports and doing stuff like business, how the business is getting a lot more analysis of the current scenario. Salesforce makes this all very easy. Okay, so that was all. If anyone have any questions, you can ask. Anyone? भी आपस में नहीं बात क्वेश्चन अरे पूछ लो यार, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है ऐसा सच। मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो सीखना कभी भी। मतलब बताया जैसे मैंने कि जावा है ना, तो जावा की तरह ही है Apex बहुत ज़्यादा। तो बस आप स्टार्ट करोगे कभी भी, तो आपको थोड़ा बहुत अगर प्रोग्रामिंग का आइडिया है तो आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें ऑनलाइन जो मैं बता रहा हूँ ट्रेलर को मतलब विजिट करना, वहाँ पे लर्निंग बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत ही गाइडेड पाथ्स हैं, सीधे सीधे। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। लेट्स से आप कहीं पे स्टक हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप टिकट क्रिएट कर सकते हो, वो सेल्सफोर्स रिजॉल्व कर देगा। काफ़ी अच्छा, मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी लर्निंग हो सकती है वहाँ से। आपको कोई मतलब अगर इंडस्ट्री में आओगे तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग अमाउंट्स होते हैं इसके। ऑल्सो सर्टिफिकेशन भी होते हैं सेल्सफोर्स के प्रॉपर, जैसे कि जावा के सर्टिफिकेशन रेडिट कराता है, वैसे ही सेल्सफोर्स के सर्टिफिकेशन भी होते हैं जो कि सेल्सफोर्स कराता है। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, प्लेटफॉर्म डेवलपर के लिए, PD1 जो डेवलपमेंट में, इसमें दो रोल्स होते हैं। जैसे एक होता है सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर का और एक होता है सेल्सफोर्स डेवलपर का, और सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट भी होते हैं, टेक्निकल आर्किटेक्ट भी होते हैं। बट जो इनिशियल जो रोल्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर और इसके होते हैं, डेवलपर के। तो लेट्स से कोई कोड करना नहीं चाहता, प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद नहीं है उसको, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर साइड में जा सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है चीज़ों को, जहाँ पे आपको लो कोड एनवायरनमेंट मिलेगा। बहुत ज़्यादा कुछ भी कोड नहीं करना है, सिंपली फ्लोज बनाने, वर्क फ्लोज बनाने हैं, और सिंपली सिक्योरिटी सेटिंग्स को मैनेज करना है। और कोई अगर डेवलपमेंट करना चाहता है तो सेल्सफोर्स डेवलपर करियर पाथ पे जा सकता है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आपको जो चीजें आउट ऑफ द बॉक्स सेल्सफोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, आप उनको, जैसे सेल्सफोर्स क्या करता है कि बहुत सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है कि आपको, जैसे लेट्स से आप अभी आपने बेसिक चीजें बनाई होंगी, यूआई बनाए होंगे, तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से या कोई भी चीज से यूआई बना रहे हो या रिएक्ट से भी चीज से बना रहे हो, तो वो सेल्सफोर्स आउट ऑफ द बॉक्स आपको फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेगा कि आपने एक बॉक्स प्रोवाइड कर दिया, बस आपको क्लिक एंड ड्रॉप करना है कि आपने ऐसे उठाया, पिक किया, उसको ड्रॉप कर दिया। तो पिक एंड ड्रॉप करके आप पूरा एक यूआई जनरेट कर सकते हो, जिसको आप सिर्फ बैकएंड से थोड़ा सा कनेक्ट करना होगा। बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए कि ये चीज यहाँ पे सेव होगी, ये चीज इस ऑब्जेक्ट में सेव होगी, ऐसे कनेक्ट करना होगा, और आप पूरा एक बहुत अच्छा यूआई बना सकते हो, जो कि बनाने में अगर यूजुअल मेथड से बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाता, बट एज वी आर यूजिंग पिक एंड ड्रॉप, सो इट्स गेट इजी। ओके, सो अगर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, तो उस पर डेवलपर्स काम करते हैं। जैसे कुछ ऐसी कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट आ गई जो आउट ऑफ द बॉक्स सेल्सफोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो उनके पास अपनी एक डेव कंसोल है, उसमें आप जाके पूरा क्लासेस लिख सकते हो, कोड लिख सकते हो, जैसा आपको चाहिए यूआई बना सकते हो। जैसे इसमें एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लाइक लॉट मोर लाइक रिएक्ट है, तो उसमें आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते हो, जावास्क्रिप्ट से यूआई बनाते हो। वो सिर्फ यूआई के लिए लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, और कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, जो कि सिर्फ यूआई बनाने के काम आते हैं। बैकएंड में हम लोग एपेक्स को यूज करते हैं, और जैसे एसक्यूएल होती है वैसे यहाँ पे हम एसओक्यूएल यूज करते हैं, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। तो जैसे हम एसक्यूएल में सेलेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं, वैसी सिमिलरिटी एसओक्यूएल भी चलती है, बट यहाँ पे जो हम डेटा फैच कर रहे हैं वो हम ऑब्जेक्ट से फैच कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आप अभी जैसे ट्रेडिशनल डेटा स्टोर कराते थे, यहाँ पे डेटा के लिए ऑब्जेक्ट बनते हैं कि आप ऑब्जेक्ट, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया कि लेट्स से कोई यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कॉलेज का, कि जैसे हमारे यहाँ पे आप लोग सब स्टूडेंट्स हो, तो क्या हुआ कि उन्होंने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, अपन आप वेरियस फील्ड्स बनाएंगे कि इसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, फादर नेम, मदर नेम, ऑल ऑफ दैट, एंड वी विल फिल दैट इन्फॉर्मेशन विद योर इन्फॉर्मेशन। सो उससे होगा क्या कि आपकी पूरी, आपका पूरा डेटा अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। फिर आपको लेट्स से कॉलेज को फीस चाहिए उससे, या आपसे कोई भी कॉलेज को कम्युनिकेशन करना है, तो वो कम्युनिकेशन वो ऑटोमेट कर सकता है उस कम्युनिकेशन को। मतलब आपको सिर्फ कुछ फ्लोज बनाने हैं, उससे आपको रेगुलर रिमाइंडर्स जाते रहेंगे स्टूडेंट्स को। और ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि लेट्स से आपको कॉलेज कुछ सेमेस्टर वाइज करिकुलम प्रोवाइड करता है, तो क्या होगा कि आप अपनी लॉगिन कर सकते हो उसमें सिस्टम में, आप देख सकते हो कि आपकी अटेंडेंस कितनी है। एक अटेंडेंस का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, उससे हमने सब बंदों की हम रोज अटेंडेंस वहाँ पे डाल रहे हैं। तो जो एक ERP का काम है वो ये CRM भी कर सकता है, मतलब सिमिलरली और मोर एफिशिएंटली कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो UI है वो बहुत फार मोर बेटर है,
और जो ईज ऑफ एक्सेस है कि आप कहीं पे भी बैठे हो, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट यू नीड टू इंस्टॉल समथिंग, ओके आप इवन अपने फोन पे बैठे हो, आपको देखना है कि यार हाँ मतलब क्या चल रहा है, तो आपने फोन पे लॉग इन कर लिया। तो वैसा सिस्टम कि आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ओके। सो फॉर द end user it's like SaaS, but for the developers like us people it will be like platform as a service, क्योंकि it provides a platform on which we can develop our application and we can get the business done. So that's what it is. So anyone have any questions about this? Anything? नहीं वही है, एपेक्स यूज करते हैं बैकएंड के लिए। जो एपेक्स है, नहीं बैक फ्रंट एंड के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, बैकएंड के लिए सिर्फ एपेक्स यूज करते हैं। फ्रंट एंड के लिए जैसे अपने LWC हो गया, और कंपोनेंट्स हो गया, तो ये सब जावास्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं वहाँ पे, और बस थोड़ा सा एक जो है आउटलाइन अलग हो जाती है, बट ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे कि रिएक्ट वगैरह पे अगर आपने काम किया हो, तो वैसे ही सिमिलरली ये भी एक फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करेगा, बेसिक फ्रेमवर्क, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा जल्दी कर सकते हो। कोई भी चीज करनी है तो आप अच्छे से, मतलब यूआई बनाने में आपको मुश्किल से, एक अच्छा वर्ल्ड क्लास यूआई बनाने में आपको 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, अगर एक पेज बनाने में, तो उतना इजीली चीजें हो सकती है। सो इसलिए सेल्सफोर्स बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा, मतलब आपने इसलिए नहीं सुना इसका नाम बहुत ज्यादा, क्योंकि ये फेमस यूएस यूके में ज्यादा है मोर देन इंडिया, बिकॉज इंडियंस जो है वो थोड़ी मतलब जो सेल्सफोर्स है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है इसको, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए मेजर क्लाइंट्स ही हैं इनके बहुत ज्यादा, ऐसे मतलब Amazon हो गया, गूगल हो गया, सब सेल्सफोर्स यूज करते हैं जहाँ पे भी कस्टमर इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे सेल्सफोर्स का रोल आ ही जाता है। क्योंकि वहाँ से क्या होगा कि आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी है, लेट्स से कि फ्लिपकार्ट या आपने कोई सामान लिया, उनको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी है आपको, तो वो सब चीजें ट्रैक हो सकती हैं बैकएंड में सेल्सफोर्स से बहुत इजीली। और इन सब चीजों के लिए उसमें पूरा पहले से एक प्रोसेस बना हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट अ लीड फ्रॉम दी लाइक एन अपॉर्चुनिटी और अ लीड फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द कस्टमर, लाइक द सेल्स प्रोसेस का पूरा एक फ्लो बना हुआ है कि पहले एक अपॉर्चुनिटी आई, अपॉर्चुनिटी के साथ हमने फॉलो अप किया, फॉलो अप करने के बाद हमने उसको पोटेंशियल लीड में कन्वर्ट किया, फिर उस पोटेंशियल लीड को हमने बार बार रीच आउट किया, जैसे कि ब्रांड करके आपको बार बार रीच आउट किया, सारी चीजें करी, फिर वो आपका कस्टमर बन गया। फिर जब वो आपका कस्टमर बन गया तो आपके पास पूरा डेटा वहीं पे अवेलेबल है, मतलब अगर आपको मार्केटिंग भी करनी है उस चीज के लिए, तो आपके पास मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग क्लाउड में सारा डेटा अवेलेबल है, तो वो जो कस्टमर का डेटा है वो वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जो डिसीजन है ना वो लॉट मोर बेटर हो सकते हैं, कस्टमर को आप बहुत बेटर जान सकते हो, आप इजीली कस्टमर से एंगेज कर सकते हो अपने कस्टमर से। और जो यही गैप जो है, पहले ये गैप बहुत ज्यादा था एक्चुअल में। यूजुअली जो कंपनीज होती थी ना, तो वो अपने कस्टमर्स को इतना ज्यादा है, मतलब जो बन गए वो तो ठीक है, बट जो लीड्स हैं उनको इतना ज्यादा हैंडल नहीं कर पाते थे प्रॉपर्ली। बट सेल्सफोर्स ने क्या किया, रिवोल्यूशनाइज किया इसको, उन्होंने एक प्रॉपर प्रोसेस निकाला कि इससे आप क्या कर सकते हो सारी चीजें। इसीलिए अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे सेल्सफोर्स का देखोगे, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, 55% के आसपास है, 50-55%। सो लाइक जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके पास, मतलब बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कॉम्पिटिटर है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट आता है डायनेमिक्स 360, सो वो भी कम्पीट करता है इसको, लेकिन दीज गाइस आर नॉट मोर फॉरवर्ड देन देम, बिकॉज सेल्सफोर्स करता क्या है कि जैसे भी कोई नया स्टार्टअप आया, जैसे अभी म्यूलसॉफ्ट आया था कुछ दिनों पहले, म्यूलसॉफ्ट क्या करता है, उस पर आप एपीआई बना सकते हो, एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो उसके थ्रू। तो सेल्सफोर्स से आप क्या करोगे, उसको तुरंत सेल्सफोर्स ने उसको बाय कर लिया, अब आप सेल्सफोर्स से म्यूलसॉफ्ट की पे कोई एपीआई बनाई, मतलब पहले आप पूरी फंक्शनैलिटी बना रहे हो, आपने वो नहीं किया, अब आपने एपीआई बनाई म्यूलसॉफ्ट पे और सेल्सफोर्स से उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो आपका जो काम था वो और इजी हो गया। तो जो मतलब अभी मार्केट में क्या चल रहा है, चीजों को ऑटोमेट करो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुद से, मतलब खुद से चीजें ज्यादा कर रहे हैं, इससे बेटर है कि ऑटोमेट करके कम काम करो और कम चीज, मतलब कम एफर्ट से ज्यादा काम हो जाए, ये जो है मोटो है। तो अगर किसी को कुछ भी पूछना है, इसके अलावा भी किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है सर। मैं इनसे पास आउट हूँ यार, नया नहीं हूँ ऐसे ही बैठता था मैं भी, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। क्योंकि 1-2 साल आप सब सेकंड ईयर थर्ड ईयर से यहाँ पे, फोर्थ ईयर का कोई होगा नहीं, हाँ तो अभी फोर्थ ईयर में आओगे, फिर अचानक से आके बोल जाएंगे कि कहाँ गए तो इसलिए पहले से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी ऐसे ही बैठता था, सोचता था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है,
पर ये कि मतलब ये नहीं होगा कि आप पूरी चीज़ें ग्रैब कर पाओ, बट स्टिल आई वांट कि आप एक बार जाके देखो ऑनलाइन की ट्रेनेट पे क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्कआउट करता है, क्या होता है, एक बार ट्राई करो, कुछ नहीं होगा, बेसिक स्टफ ट्राई करो, और इससे बेटर क्या होगा कि आप इंडस्ट्री रेडी बन जाओगे जल्दी, ना कि आप वेट नहीं करना होगा आपको इतना ज़्यादा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज में आप हायर होने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल फ्रेंड्स हैं जो बहुत टाइम से बेंच पे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इतना आपको अगर पहले से एक्सपीरियंस रहेगा, प्रायर एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपको बहुत इजी रहेगा कहीं भी प्रोजेक्ट में जाना, कहीं पे भी मतलब ग्रो करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, वरना फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आगे जाके। सो इसलिए अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहोगे पहले से, तो ये सब चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? कुछ तो पूछ लो। Thank you so much, and thank you the faculty members which made this possible. So I am very happy. Thank you guys. Thank you so much.